This call is now being recorded. Good morning, everyone. In the last classes, we were discussing problems based on trigonometric formulas. So, as you must have noticed, I always begin my class by showing the formulas for next 2 minutes. So, have a quick look at the main formulas: sin A plus B, sin A minus B, cos A plus B, and cos A minus B. Tan A plus B and tan A minus B, and followed by cot A plus B and cot A minus B. So these are our set of first 8 direct formulas to be used. Then we have the formulas, the set of these 4 formulas like 2 sin A cos B, 2 cos A cos B, 2 cos A sin B, and 2 sin A sin B. Then followed by sin A plus sin B, sin A minus sin B, cos A plus cos B, and cos A minus cos B. There is a change one need to note in cos A minus cos B. Minus sign will be there. Then we have double angle formulas for sin 2A, cos 2A, and tan 2A. Cos 2A deductions, sin A and cos A के direct formulas like this. And then followed by the triple angle formulas for sin 3A, cos 3A, and tan 3A. So just be sure that whenever we talk about trigonometry, or at least all these 20 formulas, almost 20, should be on your tips. Then only you'll be able to attempt the questions. And already told you many a times, LHS to RHS, of course, formula is to be learned. And at the same time, from RHS to LHS, that thinking process, the reverse thinking, is again very, very important and essential. So these were the questions given to you for proving part. So ये वाला तो बहुत easy है, F part. Let me focus on E part. Again, consider LHS. The easier way would be rationalize. Let's see what will happen. It seems that it may be rationalization, or if I look at this tan wali term aa rahi hai, what I can do, note this step carefully. Only focus on numerator. And it is 1 plus sin x, or 1 can be written as cos square x by 2 plus sin square x by 2. ये 1 की जगह लिख दिया. And sin x can be written as using the half angle formulas. Sin x क्या होता है? 2 sin x by 2 cos x by 2. Similarly, नीचे अगर आप ध्यान से देखें 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 की जगह तो यही लिख दिया cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और माइनस में साइन एक्स और साइन एक्स का हाफ एंगल 2 साइन एक्स बाय 2 cos एक्स बाय 2. Note carefully in the numerator. Isn't it a square plus b square? क्या हुआ अगर आप ध्यान से देखें ऊपर? a square cos square x by 2
then plus b square sin square x by 2, and then plus 2ab. So a square plus b square plus 2ab, that formula will be actually a plus b और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है अगर आप ध्यान से नोट करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, विच इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर. I don't know, I'm facing problem. It's coming very slow on my screen, whatever I'm writing here. Anyway, so this is the root of दोनों टर्म के स्क्वायर हैं, तो स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल्ड आउट. I will get cos x by 2 plus sin x by 2. Excuse me, sir. Yes. So can we write sin x is equal to 2 tan x by 2 upon 1 minus tan square x by 2? लिख दो, कोई रोकेगा नहीं. बट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? यही तो बात है ना कि देयर आर मेनी फार्मूलाज, बट विच इज टू बी अप्लाइड, वही तो मेन सोचना है. अगर आप वो tan की टर्म में यहाँ पर वो फार्मूला लिख भी दोगे, तब वो नीचे वाला स्टेप जो है ये कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है इस पर्टिकुलर स्टेप में, वो नहीं बनेगा ना. तो इसीलिए वो वाला फार्मूला यहाँ हम यूज नहीं करेंगे. राइट, तो ये आ गया cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2. बट चेक करो आंसर तो tan की टर्म में कुछ आ रहा है. इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या करेंगे आगे देखिए, डिवाइडिंग बाय cos x बाई 2. थिंक लॉजिकली, ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा, cos x बाई 2 से जब डिवाइड करूंगा 1 प्लस 1 plus tan x by 2 sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, tan x बाई 2. upon 1 minus tan x by 2. नीचे भी क्लियर है, 1 माइनस tan x बाई 2. अब ध्यान से देखिए फिर से, 1 को मैं लिख सकता हूं tan पाई बाय 4. तो 1 की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए tan पाई बाय 4 से. नेक्स्ट एज इट इज डिवाइडेड बाय, इस 1 को तो एज इट इज रहने दो, और आप इस टर्म को tan x बाई 2 जो लिखा है एज्यूम करो कि ये 1 से मल्टीप्लाई है. आई कैन मल्टीप्लाई विथ 1 एनी टर्म, वो आंसर तो सेम ही रहेगा ना. और 1 को लिख दिया tan पाई बाय 4 इंटू ये tan x बाय 2 एज इट इज. नाउ इफ यू रीड केयरफुली, नोट क्या हो गया ऊपर, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, बिल्कुल उसी फॉर्म में आ गया. तो वो बन जाएगा tan a प्लस b. आप रिवर्स में सोच के देखिए, जो मैंने अभी नीचे लिखा है, अगर आप इसमें tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाते तो ये ऊपर वाला स्टेप ही आता. तो रिवर्स थिंकिंग जो मैं बात कर रहा था, दैट इज बीइंग अप्लाइड हियर, और यही आपको आंसर प्रूव करना था. हेंस प्रूव. आई होप द बेसिक आइडिया इज क्लियर. और ये जो डिवाइडिंग बाय cos x बाय 2 है, या जो स्टार्टिंग में 1 को लिखा था cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 की फॉर्म में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. बाकी तो चलिए प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर होगा. चेक दिस आउट. ए पार्ट,
लुक केयरफुली, LHS ये प्रूव करना है, डायरेक्ट टेक द LCM, ये LHS लिख लिया यहाँ पर, एंड टेक द LCM. तो व्हाट विल हैपन, it will be cos x minus sin x into cos x plus sin x, एंड ऊपर क्या आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखें, cos x plus sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में cos x minus sin x का होल स्क्वायर. It is just taking a simple LCM. Open the square in the numerator, a plus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और मैं 2 sin x cos x पहले लिख लेता हूँ. So instead of this in numerator we can apply a square minus b square formula. हाँ वही करेंगे अभी. और नीचे ये माइनस में ये कितना आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये तो न्यूमरेटर हो गया. नीचे ऑफ कोर्स इट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. याद रखो हमने 8th क्लास के सिंपल फॉर्मूलाज अप्लाई करे हैं. नाउ वन कैन इजीली नोट, ये 2 sin x cos x तो कैंसल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, नहीं, ये कैंसल नहीं हो रहा, 1 कैंसल हो रहा है, ये रिवर्स. cos square यस, x and sin square x will cancel. हाँ. तो आप चेक करिए, व्हेन यू ओपन दी ब्रैकेट, ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसल, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसल, और आप ये कह दो भाई cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो गया था, तो 1 से 1 कैंसल. बट यहाँ क्या बच जाएगा आपका, 2 sin x cos x प्लस 2 sin x cos x, विच इज 2 इंटू 2 sin x cos x. और नीचे अगर आप ध्यान से देखें, इट इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ cos 2x. sin 2 sin x cos x होता है sin 2x, और sin x अपॉन cos x आ गया tan, एंगल था 2x के इक्वल, विच इज इक्वल्स टू योर RHS. नाउ कंसीडर इसका बी पार्ट, वो भी बहुत सिंपल है. बट बिफोर आई मूव ऑन, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस एवरीवन. Yes, do it fast. Check out the B part. Let me consider LHS, and this is tan A plus B plus tan A minus B. So जिस तरह से मैंने बोला उसी को यूज करते हैं. ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, tan A plus B. tan A plus B होता है tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. And the second term में लग गया which formula, tan A minus B, which is tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. tan पाई बाय 4 तो 1 होता है, तो बस ये आ गया 1 प्लस tan x बाय 2 अपॉन
1 माइनस tan x बाय 2। यहाँ पर भी tan पाई बाय 4 की जगह सिर्फ 1 लिख दीजिए। What should we do next? LCM. कॉमन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, इसके बाद मैं एलसीएम ले लूंगा। ये एक्चुअल में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनकर आ जाएगा है, अगर आप ध्यान से देखें, और बिल्कुल जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, ये इसका स्क्वायर आ गया और यहाँ 1 माइनस tan x बाय 2 का होल स्क्वायर। Open the square and simplify. This will becomes 2 times 1 plus tan square x by 2। ये मैंने एक स्टेप स्किप किया है और नीचे आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर आप सिर्फ स्क्वायर ओपन करिए, कंबाइन लाइक टर्म्स, यू विल गेट दिस। Now the most important simple observation. I can write this as 2 upon ये 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 है, और ये टर्म अगर मैं इसके नीचे ले आऊं इस तरह से, क्यों किया वो अभी ध्यान आ जाएगा देखकर। ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मेक इट श्योर कि अब नीचे आप आइडेंटिफाई कर पाए हैं। इट इज द डायरेक्ट फार्मूला ऑफ cos x। हाउ कम? आप चेक करिए, हमने कम से कम cos 2x का फार्मूला किस तरह से याद किया स्टार्टिंग में। 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। आप एंगल का हाफ कर दो थ्रू आउट, तो हाफ कर दो का मतलब एंगल को 2x की जगह x कर दो, तो cos x क्या मिलेगा? बस एंगल का हाफ करना है। सो दैट वे ऑल्सो वी हैव लर्न कि किस तरह से हम हाफ एंगल फार्मूलास को डराइव करते हैं। अब आप मैच करके देख लीजिए, ये चीज और ये जो लिखा गया था दे आर द सेम, तो वो cos x आ गया एंड 2 बाय cos x 1 बाय cos x हुआ secant x, your RHS, hence proved। चेक करिए सारे स्टेप्स, और कॉमन स्टेप्स हैं जो अब इस तरह के शायद कम से कम आगे 5 क्वेश्चंस हैं इन योर असाइनमेंट वेयर यू आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दीज। Any doubt to anyone? Check this out. As far as D part is concerned, if you recall, a very similar question NCERT का एक सॉल्व एग्जाम्पल था जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये बिल्कुल उसके जैसा जाने वाला है, सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। मेन चीज स्क्वायर्स में जो पावर ये है cos स्क्वायर x, ये होता है 1 प्लस cos 2x बाय 2। सच टाइप ऑफ फर्स्ट स्टेप फार्मूलाज टू बी यूज्ड कि ये पावर्स जो हैं उसे हम हटा देंगे और इस तरह से लीनियर की फॉर्म में लिख देंगे। तो यू कैन चेक इट आउट योर प्रीवियस नोट्स। लेट मी कम एंड टू डिस्कस C part. Consider
LHS. Yes, Kanshu, any doubt? No, sir. Oh, So we will take 2 common. yes. So हायरार्की के हिसाब से एक पहचान बनती है कि इनर मोस्ट जो ये वाला रूट है, इनर मोस्ट मतलब ये, दिस इज नेस्टेड रूट है, रूट के अंदर रूट है. लेट मी टेक 2 कॉमन. 1 प्लस कॉस 4 थीटा आ जाएगा. अब यहां एक फॉर्मूला आपको फिर याद दिलवा देता हूं. 1 प्लस कॉस 2a होता है 2 कॉस स्क्वायर a. बस इसी फॉर्मूला को आप सोचो रीअरेंज करा है. तो ये तो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कॉस 2a का. अब अगर 1 प्लस कॉस 2a इसके इक्वल है, आप क्या करिए, री डबल दी एंगल. डबल का मतलब जो 2a है उसे 2 टाइम्स कर दो, डबल कर दो बोथ द साइड्स. तो 1 प्लस कॉस डबल कर दिया, यहाँ 4a आ जाएगा और इधर आ जाएगा, डबल किया है. एंगल डबल होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं हो रही है, ये याद रखना. आप सिर्फ एंगल को डबल कर दिया. दैट इज अब a लिखूं या थीटा लिखूं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. फॉर्मूला ये बन गया. तो मैंने बस एक ही जगह थीटा लिख दिया, सो दैट 1 प्लस कॉस 4 थीटा आ गया इसके इक्वल. यूज दिस वैल्यू 1 प्लस कॉस 4 थीटा, और वो मैंने देख लिया 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा. ऑब्जर्व केयरफुली. स्पेसिफिकली अगर मैं इस टर्म की बात करूं, ये 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ गया, और जिसका रूट हो रहा है, तो स्क्वायर एंड रूट जब कैंसल होंगे, दिस विल बी ओनली 2 cos 2 थीटा. फिर से 2 कॉमन. 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहीं से मिल जाएगा फॉर्मूला, विच इज 2 cos स्क्वायर थीटा. अगेन वही चीज आ गई, ये बन गया 4 cos स्क्वायर थीटा, टेकिंग स्क्वायर रूट 2 cos थीटा equals RHS. Hence proof. There is a very important thing to note here. No one has noticed or asked, but what is under root x square? Can anyone let me know? क्या होता है ये? X. It is not x. Sir, mod x. Good, Kunal. It is mod x or plus minus x. Think logically. भाई x की जगह अगर -2 होता, यहां पर x की जगह मान लो -3 होता, और x की जगह 3 होता, दोनों केस में भी तो सेम ही आंसर निकल के आपका आ रहा था. तो इसीलिए एक्चुअल में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स होता है. व्हाट डज दैट मीन? रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? प्लस माइनस थीटा. It would be plus minus cos theta, plus minus cos theta, or I can simply say
मॉड कॉस थीटा। तो अगर मैं इस चीज को यहां ध्यान से पढूं तो एक्चुअल में 4 का रूट तो चलो 2 ही आएगा, बट कॉस स्क्वायर थीटा का जब रूट होगा तो यहाँ मॉड आना चाहिए था। कंसेप्चुअली देयर शुड बी अ मॉडुलस साइन हेयर, बट क्योंकि चलो क्वेश्चन जब फ्रेम किया जिसने भी, उन्होंने भी इस चीज को इग्नोर कर दिया, तो हम भी इसको इग्नोर कर देते हैं, राइट। बट जो साइंस स्टूडेंट स्पेसिफिकली मैं उनके लिए फोकस करता हूँ इस पॉइंट पर, आईआईटी और उन जो एग्जाम्स होते हैं एंट्रेंस टेस्ट, वहां पर इस चीज को बहुत ध्यान रखा जाता है कि हम किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। कि थीटा अगर मेरा होता मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में, वो गिवन है मान लो, तो इफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो उस केस में मैं मॉड ऑफ कॉस थीटा की जगह माइनस ऑफ कॉस थीटा लिख देता, तब आंसर ये हो जाता। तो इट ऑल डिपेंड्स कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहां आपको इसके लिए नीड नॉट टू वरी, जस्ट एक आइडिया देने के लिए मैंने ये बता दिया है। क्लियर हुआ? अच्छी बात। और एल्स यू कैन इग्नोर दिस। आंसर आपका सिंपल ये है, सॉल्व हो चुका है ये क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर अगर मॉड कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू से पॉजिटिव आएगी, तो फिर हम प्लस माइनस कॉस थीटा क्यों लिखते हैं? आप बेसिक रूल भूल गए हैं। मॉड एक्स को हमने डिफाइन कैसे किया था? मॉड एक्स इज एक्स whenever x is positive minus x whenever x is negative, isn't it? और अब आप सोच कर देखिए, अब अगर इससे तो ये आप कहोगे कि भाई मॉड एक्स नेगेटिव कैसे लिख दिया आपने। चेक इट आउट, अगर ऑलरेडी मेरा x नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव विल मेक इट पॉजिटिव। तो इसीलिए cos थीटा अगर ऑलरेडी नेगेटिव है उसकी वैल्यू, तो वो इसीलिए बाहर नेगेटिव साइन लगा दूंगा ताकि माइनस माइनस प्लस बना देगा। ओके सर। तो वो थोड़े कंसेप्चुअल चीजें आ जाती हैं, वो ठीक है, स्कूल लेवल पे हम इतना डिटेल में नहीं जाते हैं इस पे, बट बेसिक आइडिया इतना क्लियर हो तो दैट इज नाइस। Find the maximum and minimum value of this। दो पार्ट्स दिए हैं। एक मैं रूल की तरह आपको एक चीज बता रहा हूं जो आपको यहां याद करनी है। माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बताया? ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करेगा। ए एंड बी आर यूर रियल नंबर्स, तो ये एलएचएस में ये जो लिखा है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। दिस वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो मेक अ नोट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये बिगनिंग में आपको नहीं लिखवाया था, तो आई एम जस्ट कंसीडरिंग दैट अलोंग विद द क्वेश्चन इटसेल्फ। वी कैन इजीली जस्टिफाई दिस, बट अगेन टाइम नहीं होता तो हम प्रूविंग में नहीं जाएंगे, सिंपल एप्लीकेशन देख रहे हैं। अगेन 12th में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Let me begin with the considering the A part. Can you find? Yes. So for maximum value it will be 1 and for minimum -2. Wrong. Check it out.
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है, मैं अपने इस फंक्शन को चलो एफ ऑफ थीटा कह देता हूँ। एफ ऑफ एक्स कहते थे, अब ये थीटा की टर्म में है तो एफ थीटा कह देते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नोट केयरफुली, Maximum will be √2 and minimum will be minus √2. yes, I can multiply this by 1 and I can multiply this by 1. 1 1 समझ आ गया, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा का मतलब 1 से मल्टीप्लाई है। सेम वे कॉस थीटा के साथ हो गया। सो अब आप अगर इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करते हैं तो कंपेयर विद a sin x plus b cos x. a is 1 and b is 1. तो आप चेक करिए क्या रूल बताया था, माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a sin x प्लस b cos x. x की जगह यहाँ थीटा है एंड दैट इज अगेन लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दैट कितना आ गया ये आंसर, -√2 और इधर आ गया ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू √2। यही तो हमसे पूछा था। ये हो गई इसकी मिनिमम और ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। सो किंशुक, आई होप द आइडिया इज क्लियर। ये गलत था आपका सॉल्यूशन। Yes, sir. बाकी भी सभी ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिफोर आई टेक बी पार्ट, consider a simple example और अब आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्विक आंसर। फंक्शन दिया है √3 sin x minus cos x. What is the minimum of fx and what is the maximum of fx? -2 minimum, 2 maximum. चेक दिस आउट। अगर ऑब्जर्वेशन हो चुका है आपका, सिमिलैरिटी दिखेगी इस फॉर्मूला से, तो a विल बी √3, b विल बी -1, -1. तो मिनिमम हो गई माइनस ऑफ √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दैट वुड बी क्लियरली 3 + 1 4 का रूट विच इज 2, और वो अगर -2 है तो मैक्सिमम क्लियर है 2 आ जाएगा। Now let us talk about the B part. यहाँ मिनिमम कहा है, आप कर लो चलो, मैं मिनिमम एंड मैक्सिमम। माय गिवन क्वेश्चन इज एक्चुअली, अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको g ऑफ x कहता हूं। 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8। थिंक लॉजिकली, यहां से यहां तक को अगर मैं कंसीडर कर लूं अलग से, कंसीडर 3 cos x प्लस 4 sin x। आपकी चॉइस है, आप साइन वाली टर्म पहले लिखना चाहते हो लिख लो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। कंपेयर करो a sin x प्लस b cos x से, तो a विल बी 4, b विल बी 3, सो दैट क्लियरली फॉर्मूला लिख देना और ये रिजल्ट समझ आ जाना चाहिए कैसे लिख रहा हूं। Minimum will be 3 and maximum will be 13. यस, चलिए ये आ गया। दिस इज एक्चुअली 5 ओनली। 16 + 9 25 का रूट 5 आ गया। सो बेसिक आइडिया ये मैंने लिख दिया।
बट क्वेश्चन में +8 भी तो था जो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ इतना कंसिडर किया था सिमेट्री को देखकर इस फार्मूला की। तो आप क्या करेंगे, एडिंग 8 थ्रू आउट। तो बस इस जो ऊपर लिखा गया था इसमें 8 आप ऐड कर दीजिए, थ्रू आउट 8 ऐड कर दीजिए, एंड दिस वुड गिव मी 3 इज लेस देन और इक्वल टू, क्वेश्चन ही तो आ गया ये मेरा, मैंने ही बनाया है +8 करने के बाद, and less than equal to 13. Of course, this is the answer, minimum, and 13 would be the maximum value. But only every time 2 students or 3 students or but they are responding, I'm not getting response from the other students. At least tell कि सर समझ नहीं आया. I will explain that everything again. But be very very focused and sincere in समझिए, कोई डाउट आता है तो पूछो. ज्वाइन करना इज नॉट द पर्पस, सिर्फ पी लिखने के लिए आप यहाँ नहीं है कि मेरी अटेंडेंस मार्क हो गई या मेरे नंबर आ गए. Check out this question. Okay, chalo, let's have a small break for 3-4 minutes and then I will continue. But be in the class itself, right? As usual, we have 2 periods. But I am going to discuss very important questions जो follow होंगे. So small break.
Yes, please check this out. Let's continue. If tan A is m over m minus 1 and tan B is 1 over 2m minus 1, you have to prove that A minus B is pi by 4. So how I am going to proceed? Look at this. A minus B is required. The first step would be looking at A minus B, and the values are given in terms of tan A and tan B. Let me consider tan A minus B. And what is the formula for tan A minus B? That is tan A minus sin B upon 1 plus tan A tan B. upon 1 plus tan A tan B, right? All the values are actually given. ये रहा tan A and tan B to me. Let me substitute these. So m over m minus 1, ये tan A है, 1 upon 2m minus 1 and 1 plus m upon m minus 1 into 1 upon 2m minus 1. तो ये मल्टीप्लाई में है, बॉड मास है, चलो ये ब्रैकेट लगा लेते हैं. Now you just start taking LCM. So let me take LCM in the numerator. That would be m minus 1 into 2m minus 1. Excuse me, sir. Yes. Sir, in numerator should be m upon m minus 1 minus 1 upon 2m minus 1. एक मिनट. हाँ वो बीच में माइनस है, ठीक है. दिस इज नेगेटिव है, राइट. तो LCM लिया m इंटू 2m माइनस 1 और माइनस में आ गया m माइनस 1. ये तो सिर्फ मैंने न्यूमरेटर लिखा है. डिनोमिनेटर में जब आप LCM लेंगे m माइनस 1 एंड 2m माइनस 1, ये इधर 1 से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड प्लस में बचेगा आपके पास यहाँ पर m ओनली. सिंपल LCM लिया है. क्लियरली ये और ये तो कैंसल, और अब हम ओपन करते हैं ब्रैकेट. ऊपर कितना आ गया? 2m स्क्वायर माइनस m एंड माइनस माइनस प्लस 1, और इधर आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 2m प्लस 1 एंड प्लस m. सिंपल ब्रैकेट ओपन किए हैं. अगेन ये m से m कैंसल, और ये किसके इक्वल आ गया? 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 अपॉन, नोट केयरफुली, नीचे भी तो सेम टर्म लिखी गई है, एग्जैक्टली सेम चीज आ गई. मतलब ये और ये पूरे कैंसल एंड वी लेफ्ट विद इक्वल टू 1. दैट इज, मैंने कहां से शुरू किया था? tan A माइनस बी. ये tan A माइनस बी आ गया 1 के इक्वल, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? अगेन रिवर्स थिंकिंग, tan पाई बाय 4. ये तो याद हो ही चुका होता है. अब इसके बाद एक स्टूडेंट्स कॉमन गलती क्या कर देते हैं कि वो tan से tan काट देते हैं. अगर ये कर दिया, हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड. ये याद रखिए, क्योंकि ये tan से tan कट नहीं सकता है. देयर इज अ कॉन्सेप्ट जो 12th में आता है अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो उसकी वजह से हम दोनों तरफ tan इनवर्स एज अ फंक्शन ले लेते हैं. तो वो क्योंकि 12th का कंसेप्ट है तो वो अभी हम नहीं लेंगे, बट उसके इतना है कि ये कैंसल नहीं करना, और क्योंकि दोनों तरफ सेम चीज आ गई tan एंड tan,
I will directly write a minus b pi by 4 और यही आपको प्रूफ करना था, hence proof. आई एम श्योर द बेसिक आइडिया आपको ये चीज समझ आ गई होगी जो मैंने एक ये चीज बताई है कि अगर मेरे पास साइन ए लिखा हुआ है साइन बी, तो मैं ये कहूं कि साइन से साइन काट दिया और a इक्वल टू बी आ गया. दिस मे बी ट्रू एंड दिस मे नॉट बी ट्रू. हाउ कम? थिंक लॉजिकली. एक सिंपल एग्जांपल लूं मैं. साइन 0 डिग्री इक्वल होता है साइन 360 डिग्रीज के. इमेजिन अ ग्राफ. 0, 2 पाई, 4 पाई पीरियोडिक फंक्शन है, तो इन पे वैल्यू कोइंसाइड करती है. तो अब अगर मैं कहूं जी मैंने 0 साइन से साइन काट दिया, तो 0 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्रीज, वो वैल्यू कोइंसाइड जरूर कर रही है, बट ऑफ कोर्स 0 डिग्री एंड 360 डिग्रीज दे आर द डिफरेंट. वो घूमने के बाद साइक्लिक में सेम दे देता है, ये याद रखिए. इसीलिए ये चीज साइन से साइन कैंसल करके दिखाना इज रॉन्ग. Sir, in other words, we don't cancel, but we compare them. Yes, of course, and we take sin inverse function. वो 12th में आएगा, तो इसलिए मैं उस डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा. आई होप एटलीस्ट द बेसिक आइडिया इज क्लियर. और Yes, sir. अब आपके पास असाइनमेंट में वेरी सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर a माइनस बी, जैसे यहां था आपको a प्लस बी दिखाना हो पाई बाय 4, या कॉस की टर्म में प्रूव करना हो, तो देयर आर, ये तो मैंने a की पार्ट लिया ना 28 का a पार्ट, देयर आर द b एंड c पार्ट्स आल्सो वेरी सिमिलर. सो डू अटेम्प्ट इन योर होमवर्क. यस, ये आपको प्रूव करना है. लेट मी कंसिडर ए पार्ट. नोट केयरफुली, माय LHS is 4 times sin a sin 60 minus a sin 60 plus a. sin 3a के इक्वल लाना है. 4 को लिख दो 2 into 2, राइट. और एक 2 जो मैंने अभी मिस कर दिया ना, लिखा नहीं है, वो मैं इन टर्म्स के साथ कंबाइन कर दूंगा. लुक एट द सिमेट्री. sin 60 minus a and sin 60 plus a. So let me consider these terms separately. मैंने बेसिक आइडिया आई एम श्योर इज क्लियर क्या किया है, इसे एक साथ ले लिया बिकॉज दे आर शोइंग सम सिमेट्री, और इस 4 में से एक 2 इधर दे दिया. रीजन कैन एनीवन एक्सप्लेन क्यों करा होगा? सर आइडेंटिटी. So to make identity. चेक करिए. 2 sin a sin b, ये a हो गया, ये b हो गया. तो 2 sin a sin b की आइडेंटिटी, और वो क्या होती है? Sin into a minus b. cos a minus b minus cos a plus b. Please check out your formula list. Believe me, 90% स्टूडेंट्स ये गलत लगा रहे हैं. इस फॉर्मूला में कंफ्यूजन होती है हमेशा. मैंने सही लगाया ना? एक बार प्लीज जरा चेक करके बता दो. यू मस्ट हैव योर फॉर्मूला लिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू. उसके बिना नहीं हो सकता ट्रिग्नोमेट्री. डिड आई अप्लाई इट करेक्टली? यस सर. So this is 2 sin a as it is. और अब जरा मैं फॉर्मूला लगाता हूं. 2 sin a sin b क्या हो जाएगा? cos a minus b, ये माइनस हो जाएगा,
cos a minus b minus cos a plus b. ठीक है, तो लेट मी डू वन थिंग, यहाँ ये स्पेस की प्रॉब्लम हो जाएगी. माइनस cos a plus b. एंड लेट मी राइट द रीजन हेयर कि मैंने क्या किया है. 2 sin a sin b का फॉर्मूला इज अप्लाइड एज cos a minus b minus cos a plus b. क्या हुआ यहाँ? 60 डिग्री कैंसल, इधर a कैंसल, एंड व्हाट वी आर गेटिंग 2 sin a, यहाँ कितना आ जाएगा cos माइनस 2a, वो cos 2a हो जाएगा माइनस cos 120 डिग्रीज. कल भी ये वैल्यू यूज हुई थी, किसी को याद है cos 120 डिग्री क्या होता है? यू कैन फाइंड इट आउट डायरेक्टली, बट इट इज रिकमेंडेड कि ये याद हो जाए. half. नो, check it out. Cos 120 degrees is cos 180 minus 60. This is the even multiple of pi by 2 या 90 डिग्री. -1/2. Yes, cos 60 आएगा, but angle is terminating in the second quadrant जहां cos नेगेटिव होता है. So it is highly recommended कि आपको cos 120 याद हो, तो आप ये डायरेक्ट भी लिख लेंगे, तो इतना दिखाने की भी जरूरत नहीं है. So what will happen? 2 sin a और ब्रैकेट में आ गया cos 2a plus 1/2. लेट मी टेक द एलसीएम और देखिए क्या आ जाएगा यहाँ. बाय 2. क्लियरली ये 2 से 2 कैंसल. लुक एट द आंसर. sin 3a लाना है, which is actually given by 3 sin a minus 4 sin क्यूब है. अब आंसर जो है वो ओनली इन टर्म्स ऑफ साइन है. आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए. मैं अब क्या करूंगा, cos 2a के 4 फार्मूला पता है, बट आई एम गोइंग टू यूज विच फार्मूला? 1 minus sin square a. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए. इस एक 2 की वजह से आपका फार्मूला गलत हो गया था. इट्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर. बाकी भी सभी ध्यान से नोटिस करिए इस चीज को. नेक्स्ट तो अब कुछ नहीं बचा, बस ओपन दी ब्रैकेट. ये देखो ये आ गया 2 और ये +1, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर है. ओपन दी ब्रैकेट, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, which is the direct formula of sin 3a equals RHS, hence proved. If I'm moving fast, please do let me know. I'm waiting for a minute. कंप्लीट इसका सॉल्यूशन ऊपर से देखिए.
consider B part. I will only give you the basic hint. होमवर्क में आपको ये कंप्लीट करना है. मस्ट डू. कैन एनीवन लेट मी नो क्या करा जाए पहला स्टेप, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है. एनीवन? So cos is common. ये कौन सा रूल है भाई? ना मैंने पढ़ाया ना मैंने लाइफ में पढ़ा. Sir, open the brackets. दैट विल बी वेरी लेंथी. पहली बात जो आपने कहा, जो अभी मैंने नोटिस नहीं करा, जिसने भी कहा, बट ये कॉमन गलती क्या हो जाती है कि कॉस को कॉमन ले लो. जैसे कहा कॉमन का मतलब चलो जी ये कर दिया. थिंक लॉजिकली. ये तो सारा ही गलत हो गया. कैसे? कॉस ए प्लस कॉस बी, क्या एज्यूम कर लिया कि वो कॉस कॉमन आ गया और वो a प्लस बी हो गया. रिमेंबर दिस इज अ नोटेशन. ये कॉस इससे मल्टीप्लाई नहीं है. आई कैन नॉट टेक कॉस कॉमन. और अदरवाइज सोचिए कॉस a प्लस बी, इसका पूरा आपको प्रॉपर फॉर्मूला पता है. कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. ऑफ कोर्स दैट कैन नेवर इक्वल टू दिस. तो ये तो चलो वो लॉजिकली ही पहला ही स्टेप गलत हो गया था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. औरों ने नोट बोला So नहीं, बट ठीक कर दी. applying the formula cos A minus B plus cos A. सी दैट कैन बी अप्लाइड. अभी वो किसी ने हिंट दिया था, बट अगर आप लॉजिकली समझें और Sir, cos A can be written as plus minus in root. Cos नहीं in terms नहीं, of या इजी चीजों को मुश्किल मत बनाओ. ये लुक एट दिस केयरफुली. सिमिट्री है यहाँ पर कुछ. देयर इज अ सिंपल सिमिट्री ओवर हियर. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, दिस इज cos A plus cos B. इस पूरे को, या cos X plus cos Y, whatever you want you can say. तो पूरे को आपने एक एंगल ये तो सिमिट्री से देखा. और व्हाट इज cos A plus cos B, बताइए क्या होता है? 2 cos A plus B by 2 cos A minus B by 2. दैट्स इट. ये फॉर्मूला लगा दीजिए और इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. कैसे? 2 cos A plus B, A plus B by 2 into cos A minus B by 2. So cos A as it is, and ये क्या आ जाएगा? इधर A से A कैंसल. What is this? Isn't it cos 120 डिग्री आ गया? Into cos ये कैंसल, cos minus A which is cos A only. चलो अब तो सॉल्व मैंने पूरा क्वेश्चन कर ही दिया है. चेक दिस आउट. cos 120 डिग्री माइनस हाफ होता है. 2 से 2 कैंसल, cos A से cos A कैंसल, हेंस प्रूव. इससे इजी मेथड आप नहीं बता पाएंगे. यस, इससे लेंदी बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं कि मैं यहां cos A माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूं, फिर यहां cos A प्लस बी का लगा दूं, और फिर कंबाइन द लाइक टर्म्स एंड सिंप्लीफाई. तो दैट इज ओके. 2 लाइन 2-4 स्टेप्स चलो एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे. सो दैट इज द ऑल्टरनेटिव वे विच इज एक्सेप्टेड. बट वो cos कॉमन वाला है, वो मैं बता रहा हूं मेनी स्टूडेंट्स डू मेक सर्टेन काइंड ऑफ मिस्टेक्स. सो प्लीज बी वेरी अवेयर एंड क्लियर अबाउट दिस. It's not a linear, so I cannot take cos as common.
आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट. नोट कर लीजिए, इसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ये. I have added one extra part. एग्जाम में नहीं आएगा, no need to worry. But can anyone answer this particular thing? ये क्या हो जाएगा? ये एक्सप्रेशन, एक छोटा सा फार्मूला याद दिलवा देता हूं. If a plus b plus c is 0, then aq plus bq EQ. plus plus C cube into 3 ABC. is Yes, sir. 3abc. अब आप चेक करो कौन से फार्मूला कहाँ अप्लाई हो जाएं. अब ये क्वेश्चन इस तरह का आईआईटी में आया हुआ है, तो आई एम नॉट टेकिंग द होल पार्ट, बट जस्ट द बेसिक आइडिया. अगर आपको ये करना हो तो थिंक लॉजिकली. ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो मैंने वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कहा. आंसर होगा 3abc. 3a इंटू बी इंटू सी. इसके हिसाब से तो चलो ये आंसर आ चुका है, बट दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड, और बहुत सिंपलर फॉर्म में इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूं. वी विल नॉट टेक दैट इन आवर सिलेबस. I'm just showing you the interlinkage of what you have already studied in say grade 9th और उनकी एप्लीकेशंस. अब बट इस तरह के 12th में फिर क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में. तो इसीलिए प्लीज डू नॉट बी मच प्राउड ऑफ वट एवर यू हैव स्कोर्ड. 100 आउट ऑफ 100 है या 95 है या 98 है या 60 है. फॉर मी यू ऑल आर एट स्टैंडिंग ऑलमोस्ट एट द इक्वल लेवल. पहली बात तो ये मेरा बिल्कुल परसेप्शन और एक कंसेप्ट है, क्योंकि कईयों ने 90 मार्क्स भी आ गए पर उनको प्रीवियस चीजें रट्टा लगे हैं कईयों में, और कुछ आगे याद नहीं रखते हैं. तो वो जब तक अब आप अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, याद रखिए रियल मैथ्स जो है वो अब आपकी स्टार्ट हुई है. अभी तक आप सिर्फ बेसिक अल्फाबेट होता है ना, वो बचपन में आपको पढ़ाया जाता है ABCD, और उनसे वर्ड्स को बनाना, सेंटेंसेस बनाने अब स्टार्ट हुए हैं 11th-12th में. तो मैनी ऑफ यू विल फेस लॉट ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स अगर आपका बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट बढ़िया नहीं है, और अगर आप अब भी सीरियसली नहीं लेते हैं चीज़ों को, और ऑनलाइन के बेनिफिट्स के हिसाब से सोच के चलते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कोर द गुड मार्क्स, तो कैसे आगे बात बनेगी. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. So that's all for today's class. If you have any doubt, you can ask and mark your attendance, and then you can leave. Thank you, sir. Bye, sir. Okay, bye. Thank you. All the best. इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए, उतना भी सफिशिएंट है. नो मच होमवर्क. So you can leave the class now.